वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं अपने एक स्टूडेंट का जिनका कि हाई कोर्ट का इंटरव्यू है पर्सनल असिस्टेंट का, ऑलरेडी डेट पहले अनाउंस थे फरवरी के, बट वो आगे चले गए हैं मार्च में। उनका मॉक इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। ये वर्किंग है, अभी मुंबई में किस जॉब पे हैं बताएंगे आपको। बाकी अभी फ़िलहाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जे के और हाई कोर्ट के इंटरव्यूज चल रहे हैं। इसके अलावा जो भी इंटरव्यू के लिए आप कांटेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पे 7503235358 पे। ओके, स्टार्ट करते हैं बेटा। May I come in, sir? यस प्लीज कम। वेरी गुड आफ्टरनून। Good afternoon. खुद से ग्रीट करेंगे, प्लीज हैव अ सीट। Thank you, sir. लाउडली थोड़ा बोलेंगे। प्रिंसा, आपके नाम का क्या मतलब है? Sir, मेरे नाम का मीनिंग है सक्सेस। सक्सेस। ओके, ब्रीफली इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को। So my name is Prinsha. I did my schooling from SKV Shaktinagar number 1 and I did my post graduation from IGNOU in commerce. And currently I am working in income tax department in appeal section as a stenographer at Mumbai. And my hobby is reading. Thank Okay. you, sir. Since how many years you are working in income tax department in Mumbai? Sir, I have been working in this department for a year now. Okay, I am just coming on these questions. Firstly, tell me, you are here for High Court interview of personal assistant. Okay, currently your work profile is? Sir, I am working as a stenographer in income tax department and I prepare the order sheets, I check emails, I do basic drafting of the orders and I handle the ITBA portal where I send notices and download files from the portal. That's Okay. it, sir. Why you want to change your job, Prinsa? Sir, first of all, as I'm from Delhi itself, so I want to get posted in Delhi only. And this opportunity provides me a financial accommodation also where I am currently working at. And I am already 29 years old, so I want to settle down now. Okay, apart from this first line, means we have to say in the front of panel, sir, the feature of this job is my posting is in Delhi. The meaning is same, but स्टेट में हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मुझे दिल्ली में आना है। सर, इस जॉब का ये फीचर है कि इसकी जॉब मुझे यहीं मिलेगी। पहले तो इससे स्टार्ट ना करके ये बोलना है हमें, जो हमारा पे स्केल वाली चीज़ है कि सर करंटली मैं अभी मुंबई में पोस्टेड हूँ और सर मैंने जो भी वहाँ पर सीखा है, मेरे पास अभी अपॉर्चुनिटी थी हाई कोर्ट के जज की, हाई कोर्ट के मतलब पीए की, ठीक है, हाई कोर्ट का जो भी पीए का मेरा इंटरव्यू है उसके लिए, और मैं एलिजिबल थी और इस जॉब का फीचर है कि मेरी पोस्टिंग यहीं होगी। इस तरह से बोलना, ना कि मैं घर से दूर हूँ, नहीं तो फिर वो उसमें क्वेश्चंस निकालेंगे। ओके, हाई कोर्ट के बारे में क्या जानती हैं आप? सर, हाई कोर्ट जो है स्टैब्लिश हुआ था 31 अक्टूबर 1966 में और चैप्टर 5 और पार्ट 6 जो है हाई कोर्ट को पावर देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स और अदर मैटर्स पे अपने डिसीजंस दे पाए। और सर हाई कोर्ट जो है सेकंड उसमें हायरार्की में सेकंड नंबर पे आता है और ये टॉप मोस्ट कोर्ट होता है स्टेट का। ओके, पर्सनल असिस्टेंट का वर्क प्रोफाइल पे आप जो भी काम करेंगी, व्हाट योर करंटली वर्क प्रोफाइल विल हेल्प इन दिस जॉब? Sir, as I am working in the income tax and I know the working of government institution and there is also a time barring in income tax from January to March, so I can where I have to sit for late hours and I can handle work pressure easily. But here in the High Court of Delhi, the work pressure is more. You have to stay for a long time, and you know that. What is your shorthand speed? Sir, currently it is around 100. And typing? Typing around 45 or 50. But here the work pressure is little bit more in comparison with your current job. So how will you manage? Sir, I can manage because as I said, I know the working of government institution and there is also work pressure in my current job and I know how to manage work, how to divide work and teamwork. I can manage work efficiently. Okay. Okay, Prinsa, as you know that recently budget is released. Is there any income tax related news? Yes, sir. You have gone through? Yes, sir. The tax slabs are changed now. From there is no tax up to the income of 12 lakh, and there is a standard deduction of 75,000 rupees. Okay. Headquarter of income tax is? Sir, Mumbai. You know about the PAN card?
Sir, yes. PAN stand for Permanent account number. permanent account number. It is issued by Minister of Finance. Income Tax Department of Government of India, na? Okay, sir. Okay, and total alphanumeric number in the PAN card is So there are 5 alphabets and 6 alphabets and 4 numeric numbers. means total 10. Yes, sir. Okay, fourth place is fixed for every individual. What is that alphabet is called? G. P. Okay, P. It's P for everyone. Either you, me, and anybody is P. And the next one is the surname first alphabet. Okay. Like if Prinsa Kumari is there, then PK. Prinsa Kumari Singh is there, then PS. Only Prinsa is there, then PNP. Okay, sir. Okay. After changing this job, you want to stay there or again you want to go higher in your other job? Sir, currently this opportunity is best for me and the future is uncertain. So I don't have any plans and I'm already aging, so I want to settle down. Okay. After some time you got married. Okay, you have a family, you have an in-laws, husband and all. How will you manage at that time? So my family, my current family is very supportive and I hope I will get the same supportive partner as I am already. Okay. Tell me something about who is the head of current CBDT, Central Board of Direct Tax? Ravi Agarwal. Ravi Agarwal. Who is the Attorney General and Solicitor General of India? Sir, Mr. R. Venkatramani is the current Attorney General and Tushar Mehta is our Solicitor General. Okay. You told that you are taking dictations of your seniors. So here also, which type of means आप किन बातों का ध्यान देंगी जिससे कि काम में एरर ना हो? सर, जैसे मैं पहले काम को बहुत अच्छे से सुनूंगी, उसको एनालाइज करूंगी और अगर मुझे कुछ भी डाउट होगा तो मैं पहले कंफर्म करूंगी और अपने सीनियर्स की हेल्प लूंगी कि क्या करना है, कैसे करना है. ओके. न्यूज़पेपर वगैरह भी आप पढ़ती हैं? हाँ जी सर. ओके. न्यूज़पेपर में अभी इंडिया यूएस का एक न्यूज़ चल रहा है, आपने देखा क्या? हाँ जी सर. क्या है वो? सर, वहाँ से जो यूएस में जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको जो है यूएस वापस भेज रही है इंडिया में और अभी 3 एयरक्राफ्ट्स आ चुके हैं अमृतसर में जो लैंड हुए हैं. आपके मुंबई हाई कोर्ट का जज कौन है? सर, चीफ जस्टिस आलोक अवाड़े. और यहाँ का? सर, मिस्टर देवेंद्र कुमार उपाध्याय. ओके. अभी इलेक्शंस हुए थे आपके एरिया का एमएलए मतलब कौन प्रेसिडेंट जीता कौन? सर, आयुष गोयल. दिल्ली में सीएम कोई बन गया है? नहीं सर. एलजी कौन है दिल्ली के? मिस्टर विनय कुमार सक्सेना. ओके. एज ए स्टूडेंट, एज ए वर्किंग प्रोफेशनल, आज यहाँ पर स्टूडेंट भी आए हैं, बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी आए हैं, हम आप ही को क्यों सेलेक्ट करें प्रिंसा? क्योंकि सर मेरे पास एक एडवांटेज है और मेरे पे थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है कुछ बच्चों से, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ और मेरे पे वो डिसिप्लिन और वो वर्क एथिक्स हैं जो कई लोगों से ज़्यादा होंगे. ओके. आपके सब्जेक्ट्स क्या थे? सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंट्स. ओके. तो फिनांस सब्जेक्ट्स के बाद आप फिर मतलब इनकम टैक्स में गई या फिर आप इधर आ रही हैं? ठीक है. आप मुझे ये बता दें कि कभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस शीट बनाती है तो मेनली किन बातों का ध्यान रखती है? बैलेंस शीट आपके सब्जेक्ट में था क्या? एसेट्स लायबिलिटी साइड के कुछ पोस्टिंग्स याद हैं? एसेट्स में क्या लिखते हैं और लायबिलिटी में क्या आता है? सर, यस, एसेट्स में जैसे प्लांट, मशीनरी और जो इनकम रिसीव हुई है. गुड. और लायबिलिटी साइड में? लायबिलिटी साइड में जो कैश जा रहा है, बिल्स पेबल हो गया, क्रेडिटर्स हो गया. गई. ठीक है. मान लीजिए मैं आपसे ये पूछता हूँ कि कभी कभार ऑफ डेज पे भी अगर काम करने के लिए आना पड़ जाए, आप ऑलरेडी वर्किंग हैं, आपको चीज़ों का नॉलेज है, आपको बुलाया जाता है, आपके जूनियर्स को नहीं बुला के आपको बुलाया जाता है, तो आपको कैसा फील होगा? सर, मैं बहुत प्रिविलेज महसूस करूँगी कि मेरे को हाई कोर्ट में काम करने का मौका मिल रहा है और मैं इस लायक मुझे समझा जा रहा है कि मैं ज़्यादा देर तक रुक पाऊँ, कि मैं काम कर सकती हूँ. ओके. अभी सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? जिस मिस्टर संजीव खन्ना. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल्स के बारे में कुछ बताइए.
सर सुप्रीम कोर्ट 214 आर्टिकल के अंडर आता है और हाई कोर्ट 124 आर्टिकल के अंडर आता है और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के अकॉर्डिंग जो है किसी स्टेट के 2 हाई कोर्ट्स या उससे ज़्यादा हाई कोर्ट्स हो सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट का खाली बस एक ही हो सकता है पूरी कंट्री में। ओके। अभी किसी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगा है बेटा, जी तो कौन से स्टेट में लगा है और किस आर्टिकल में मेंशन है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? राष्ट्रपति शासन कब लगता है? सर राष्ट्रपति शासन अभी मणिपुर में लगा है जो कि आर्टिकल 356 के अंतर्गत आता है और उसमें अगर कोई स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही या फिर स्टेट सही से काम नहीं संभाल पा रही तो उसके सारी लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट पे चली जाती हैं और उनका जो सारा काम है वो पार्लियामेंट पे चला जाता है। गुड, वेरी गुड। आपकी हॉबी क्या है? सर रीडिंग। रीडिंग, क्या नोवेल या बुक्स? सर नॉवल। लास्ट नोवेल कौन सा पढ़ा है, किस ऑथर का? सर द आर्ट ऑफ लिविंग बाय बॉब प्रैक्टर। ओके, लास्ट क्वेश्चन। एज ए फीमेल आप मुझे बताएं कि अभी जो दिल्ली की सीएम थी उनको मिलाकर के 3 फीमेल सीएम दिल्ली में रह चुकी हैं, तो तीनों का नाम बता दें। फर्स्ट आतिशी मिसेस आतिशी मार्लिना सिंह, नाम के आगे सैल्यूटेशन लगाएंगे, ठीक है? आतिशी मार्लिना सिंह। अब 2 लोग अब नहीं रही। सुषमा स्वराज, लेट सुषमा स्वराज, लेट सुषमा स्वराज एंड लेट शीला दीक्षित। ठीक है। ओके गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। अगर आप जो प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, अगर आप वर्किंग है तो अपने वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आप क्या करते हैं वहाँ यूटिलाइज कैसे करेंगे। बाकी सब्जेक्ट से उतने सवाल नहीं होंगे क्योंकि आप ऑलरेडी वर्किंग हैं, बट आपका प्रोफाइल और अभी करंट अफेयर से इन चीज़ों से आप अवेयर रहें और कॉमन क्वेश्चंस के आंसर्स पता होने चाहिए कि अभी देश दुनिया में क्या हो रहा है। और आपकी अगर आप बीए के लिए जा रहे हैं तो आपका शॉर्ट हैंड कितना है, टाइपिंग स्पीड कितनी है, डिक्टेशंस वगैरह, कुछ स्पेलिंग्स वगैरह, ये सब पूछ सकते हैं। बाकी मैंने जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इंटरव्यूज़ हुए थे उसके भी क्वेश्चन का एक PDF बनाया है, अपने स्टूडेंट्स को सर्कुलेट किया है। मेरे ख्याल से वो अभी सोशल मीडिया पे है, आप उसे देख सकते हैं, उससे हेल्प उठा सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।